चलो चेक द होमवर्क सब TD and CD. हाँ नहीं NM पूछ लो कॉलेज में, कॉलेज अतरंगी हो देता नहीं है। गवर्नमेंट नोटिस आएगा तो हॉलीडे अभी का गवर्नमेंट बोला ऐसे कि गवर्नमेंट नोटिस आया तो हॉलीडे। मतलब ऐसे नहीं कि अगर गवर्नमेंट नोटिस आया तो we'll think about it. NM को भरोसा नहीं है, पूछ लेना कोई फ्रेंड से, कोई डिग्री वाला रहेगा उसको फोन करके पूछ लो आज तक। डिग्री कॉलेज इन द मॉर्निंग, डिग्री हुआ है तो आपका भी होगा। Listen now. Tell me what you understand by trade discount and cash discount. What is trade discount? Or bulk purchase and bulk sales, right? And what is cash discount? You give it for immediate payment, right? So trade discount, has it anything to do with your payment part? No. So it will be calculated on which type of transaction? Cash, credit or both? Both. TD comes on both, cash as well as credit transaction. But what about CD? Only for cash transaction. Only if you make the payment immediately or maybe within the stipulated period of time before the expiry of your credit period. Only then will be allowed cash discount. Otherwise no cash discount. So we can conclude that trade discount comes on both credit as well as cash, but cash discount comes only on cash transactions. And which one do you calculate first? Trade discount. Which one second? Cash discount. Cannot change the order. Common sense. And which discount do you record in the books of account? CD. Cash discount. Do you record TD in the books? No. What is the reason behind it? It's an imagination. You reduce the price पहले से and then you make the bill, right? Reduce the price first and then you make the bill. बारिश भी नहीं था, करो आज फाइन, रिबन काटो, इधर फाइन 200 साइड से सब फाइन देखा लेक्चर के have to pay 200. चलो now tell me which discount do we record in the book? CD, only cash discount. TD is never recorded in the books of accounts, never. प्राइस इमेजिनरी था, जो आपने सोचा था कि ये प्राइस पे सेल करोगे या MRP पे सेल करोगे, वैसा प्रैक्टिकली होना जरूरी नहीं है। एक्चुअली कुछ भी प्राइस पे आप सेल करो, कम भाव में भी सेल कर सकते हो, जितने में सेल करोगे उतने का बिल बनेगा, बिल बनेगा तो रिकॉर्ड हो गया। तो TD कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, TD के बाद वाला प्राइस रिकॉर्ड होता है खोलने का, जितने का बिल बनता है। Then we saw CD. CD, does it get recorded in the books? Yes. CD is always recorded. Why CD is recorded? Because if you sell at say 5,000 rupees, the bill has been made for 5,000 and you got only 4,500 in return. Cash 4,500 आया, माल 5,000 का गया, तो 500 रुपया discount. That gap is there. Otherwise your entries won't tally only debits and credits. So that gap is always to be filled up by CD. Is it clear? So cash कम आया, माल ज्यादा का गया, so that discount will be always entered in the books. Which is that discount? Cash discount. Is this clear? Is this clear? फिर हमने I think 8 किए थे, 9, 10, 7 किए थे, 8, 9, 10 were for homework. Purchase goods of rupees 7,000. 8 were purchase goods of 7,000 at 10% TD, 3% CD from Rohan. ये कैश पे था या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे था, क्योंकि पार्टी का नाम दिया था और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, राइट? सो विच डिस्काउंट शुड कम? ओनली TD. सो 7,000 पे 10% इज 700. सो नेट प्राइस इज 6,300. एंट्री इज परचेज टू रोहन 6,300. सिंपल. Purchase to Rohan 6,300. Would you calculate CD? No, because it was on credit. And will you record TD in the books? No. TD doesn't get recorded. So simple entry, purchase to Rohan 6,300. All of you got that? Anyone? Mistake? Aryan Shah का wrong है? Right है? Aryan Shah. Right था wrong था? उल्टा था. Rohan to purchase.
रूल अप्लाई करो यार, पेपर में भी बहुत खराब किया आर्यन शाह. 9th one, sold goods of 3,000. You are Aryan J Shah, right? गड़बड़ किया पेपर. Sold goods of 3,000 at 2% CD to Ram, who paid us via debit card. भैया ने डेबिट कार्ड से पैसे दे दिए. It's a cash transaction. You have to consider both TD as well as CD. But TD तो था ही नहीं. TD तो दिया ही नहीं था. तो what do you assume? TD is 0. Assume मत करना ये 10%, 15%, 20%. Don't assume any rate. Okay? TD नहीं दिया तो assume it is nil. So what was the gross price? I think it was 3,000. 3,000 पे TD था ही नहीं तो 0 TD. TD is nil. तो बचा कितना 3. उस पे will you calculate CD? Yes, because it's on cash. लिखना पड़ता है सर. नहीं. नील अमाउंट नहीं लिखा तो भी चलेगा. ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. 2% CD कितना होता है इस पे 60. So net amount is 2940. Got it? And entry क्या होगा? Bank account debit, discount allowed debit to sales. To sales. Bank discount allowed to sales. आपको बताया था shortcut, the way the cash plus the way the discount. So बैंक और कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट. बैंक और कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट. So bank account debit, discount allowed account debit to sales account. बैंक में आएगा कितना? 2940. Discount allowed 60. To sales would be 3,000. Is this clear? मतलब क्या हुआ इसका? माल गया 3,000 का लेकिन पैसा आया 2940. You got 60 rupees less. That is your discount allowed expense, debit or expense or loss. Okay. There are two transactions happening. One is bank to sales and one is discount to sales. One is bank to sales and one is discount to sales. We have merged them, combined entry, compound entry. We learned it in the last lecture. Remember? That only you are supposed to do. 10th one, purchase goods of 8,000 at 5% TD, 1% CD from Rohan for cash. For cash, so is it on cash or credit? Cash. So which discount should come? Both. TD as well as CD. What is your gross price? 8,000. 8,000 पे पहले you take 10% TD which is 5% TD which is 400. So net is 7,600. उस पे 1% CD is 76. So 7,524. 7,524 is final value. Correct? और परचेज किया तो एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. परचेज में आएगा 7,600 टू कैश 7,524 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 76. इज दिस क्लियर? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एट सो एंड सो टीडी सो एंड सो सी. गया दिमाग में तीनों? बोल. एनी डाउट्स? करें आगे. 11th one देखो, continue in the same journal. 11th one. Check. क्या दिया 11th? Purchase goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal. Paid half the amount. Paid आधा amount. विशाल से गुड्स खरीदा लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया. कितना दिया? आधा. तो सीडी किस पे मिलेगा? पूरे पे कि आधे पे? समझ रहे हो? आपने 10,000 में समझो 10% टीडी ले लिया तो हुआ 9,000. उसने बोला ताबड़तोड़ दोगे ना तो मैं आपको 2% सीडी और दूंगा. I purchased. He told me that if I pay immediately, he'll give me 2% CD. But I said मेरे पास इतना पैसा है नहीं. I'll give you half. तो बंदा मेरे को सीडी में कितने पे देगा? हाफ पे ही देगा ना. जो कैश दोगे उसी पे सीडी मिलने वाला है. क्रेडिट पे तो सीडी मिलने वाला है नहीं. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इसको क्या बोलते हैं? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. सो हाउ टू टैकल इट? विल मेक अ नोट फॉर दैट. ओके. सो व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस? 10,000. ध्यान से देखना बोर्ड पे. 10,000 जीपी है, बराबर है. अब टीडी किस पे आता है? कैश पे क्रेडिट पे कि दोनों पे? टीडी तो दोनों पे आता है. पक्का? अग्री? तो पहले टीडी उड़ा ही हो ना. टीडी तो दोनों पे ही है ना. तो 10% था. टीडी वॉज 10%, राइट? 10% ऑफ 10,000 इज आई थिंक 1,000. तो इसको उड़ा दो, सब्ट्रैक्ट करो, यू गेट 9.
राइट? टीडी तो दोनों पे लेना है, कैश हो कि क्रेडिट हो। अभी सीडी कौन से पार्ट पे आएगा? जो पे किया, इमीडिएट पेमेंट। सो यू जस्ट डिवाइड दिस इन टू पार्ट्स। हाउ मच डिड वी पे? हाफ। तो हाफ इज कैश, हाफ इज क्रेडिट। तो 9,000 का हाफ कितना? 4,000। अभी यही से रिकॉर्डिंग होगा, ये तो रिकॉर्ड होने वाला नहीं ऊपर वाला पार्ट। सो 9 का हाफ इज 4,500, 9 का हाफ इज 4,500, करेक्ट? ये समझा? अभी सीडी कैश डिस्काउंट विल बी टेकन ऑन व्हाट पार्ट? कैश और क्रेडिट? ऑब्वियसली कैश, क्योंकि इमीडिएटली आधा ही पे किया। तो लेस सीडी कितना है? 2%, बट नॉट ऑन टोटल अमाउंट, ओनली ऑन दिस 4,500। तो 4,500 का 2% कितना होता है? 90 रुपीज। 1% is 45, 2% is 90. Subtracted, you get 4,410. This is what you paid. This is what you paid. मतलब आपने माल खरीदा 9,000 का, उसमें से इतना क्रेडिट पे, मतलब इतना पैसा देना बाकी है, विशाल, क्रेडिट द गिवर, एंड इतने माल के लिए आपने दिया 4,410, सो 90 रुपीज का आपका फायदा हुआ, दैट इज डिस्काउंट। So this portion is called cash purchase and this portion is called। अभी आपने एंट्रीज के वक्त कैश परचेज का एंट्री अलग से किया विद डिस्काउंट, क्रेडिट परचेज का एंट्री अलग से किया ना? कैश परचेज का किया है, क्रेडिट परचेज का भी किया है। यहां पे क्या हो रहा है? दोनों हो रहा है। तो आराम से दिमाग में फ्रेम करो, कैश परचेज का क्या एंट्री होगा, क्रेडिट का क्या होगा, सोचो आराम से। चलो क्रेडिट का सोचो। What entry you pass when you buy goods from Vishal on credit? Purchase to Vishal, right? How much? 4,500. This is the credit part. Agree? Acha. What is the entry for cash purchase? Forget Vishal now. What is the entry for cash purchase? Purchase to cash to discount receipt CD है। बुक में रहेगा ना, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। एंड दिस इज हाउ मच? 4,500 का माल आया, लेकिन यू पेड 4,410 एंड 90 इज डिस्काउंट। नाउ these two entries are also happening on the same day with a common debit. So what you get? Merge it. तो पूरा कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। That should be what? 4,500, 4,500 or 9,000? 9,000. Is that right? 4,500, 4,500 or 9,000. So 9,000. ये समझ में आया दोनों? This one plus this one. This is 9,000 total. To Vishal. To Vishal will be how much? 4,500 the credit part. इतना पैसा देना बाकी है. To cash 4,410. This much is what you paid. And to discount received account 90. You check this total. Is it coming to 9,000? Yes, definitely. कुछ नहीं था, क्या था? आपने क्रेडिट परचेज का एंट्री किया है, आपने कैश परचेज का भी किया है। अभी इस दिन थोड़ा क्रेडिट है, थोड़ा कैश है, तो दोनों को जोड़ दो, तो कंबाइंड एंट्री मिला परचेज टू विशाल टू कैश टू डिस्काउंट। इसमें आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, मतलब परचेज टू कैश टू डिस्काउंट टू विशाल, परचेज टू कैश। मर्ज नहीं करोगे तो रॉन्ग मिल सकता है। इट्स बेटर ऑलवेज यू मर्ज। सेम डे कॉमन डेबिट्स, कॉमन क्रेडिट्स, ऑलवेज यू मर्ज। पेड लिख रहा है, अभी लिख रहा है मतलब नहीं पेड ऊपर लिखा है ना आपने, वो लिखा है ना ये जस्ट फॉर वर्किंग इज ओनली। ये विशाल पेड दिस आर जस्ट, ये भी वर्किंग ही है, ये भी आपका पीछे रफ में ही जाएगा। अभी फिलहाल फेयर में बना रहा है, ठीक है? जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। Being goods purchased from Vishal, इधर खाली एक फ्रेज ऐड कर देने का, partly on cash and partly on cash and partly on credit. डिस्काउंट रेट मेंशन करो, टीडी सीडी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। Being goods purchased from Vishal, partly on cash, partly on credit. Partly on cash, partly on credit. एंट्री वही थी, बस मैंने थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट को मर्ज किया। समझा ये वाला? पार्टली ऑन कैश, पार्टली ऑन क्रेडिट।
सो टेल मी आफ्टर दिस, अच्छा ये ऊपर नीचे लिख सकते हो, कैश विशाल डिस्काउंट, खाली अमाउंट परफेक्ट होने चाहिए. कैश में कैश का अमाउंट, विशाल में विशाल का, डिस्काउंट में डिस्काउंट. हाँ हाँ ऊपर नीचे चलेगा, डेबिट्स क्रेडिट्स ऊपर नीचे चलेगा. कैश डिस्काउंट टू सेल लिखो या डिस्काउंट कैश टू सेल्स लिखो, दैट इज एब्सोल्यूट. अमाउंट्स परफेक्ट होने, डिस्काउंट में कैश का मत लिख देना, कैश में डिस्काउंट का, अमाउंट्स परफेक्ट. समझा यहाँ पे? मुझे बताओ आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन इज विशाल आर क्रेडिटर? यस यस. फॉर व्हाट अमाउंट? 4,500, नॉट फॉर 9,000 बट फॉर 4,500. विशाल को कितना पैसा देना बाकी है? 4,000. इज दिस क्लियर? बस क्रेडिट पार्ट उतना ही था, बाकी तो चुका दिया. सी द नेक्स्ट वन. Sold goods of 12,000 at 10% TD and 1% CD to Vasant. Received half the amount. अभी बेचा है तो कैसा आएगा? पूरा आया कि आधा आया? आधा आया. दिख रहा है आपको? हेलो, हाउ मच did you get? Full or half? हाफ. तो ये भी क्या हो गया? आधा ही पैसा आया, तो पार्टी कैश, पार्टी क्रेडिट. अच्छा ग्रॉस प्राइस. पहले क्या करना है? पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट, टीडी उड़ाना. इस टीडी तो दोनों पे होता है, कैश पे और क्रेडिट पे दोनों पे होता है कि नहीं? सो पहले उड़ाओ टीडी. व्हाट इज टीडी? 10%, बराबर है 10 है ना? या सो 12,000 का 10% इज 1,200. सो ये 10,800. एम आई राइट? अभी सोचो, पूरे पे सीडी लूंगा मैं? आधा ही रिसीव किया ना. मैंने उसको बोला पैसा दे तो सीडी दूंगा, बोला आधा दूंगा, बोला आधा देगा तो आधे पे सीडी दूंगा. पूरे पे सीडी देने वाला नहीं हूं मैं, तो आधा कर दो इसको. आधा, हाफ कैश एंड हाफ क्रेडिट. आर यू गेटिंग दिस? ओके. सो हाफ ऑफ 10,800. ऊपर वाला तो रिकॉर्ड होने वाला नहीं है, टीडी तो इमेजिनरी था. 10,800 का हाफ कितना होता है? 5,400 एंड 5,400. ओके. देन व्हाट पार्ट यू टेक सीडी ऑन? कैश पार्ट. तो लेस सीडी इज आई थिंक 1%. 1% of 5,400 is 54. So 5, 3, 4, 6. This is what you have actually received in cash from him. क्योंकि आपने आधा पैसा रिसीव किया ना, तो आधे पे सीडी काट के बंदे ने आपको 5,346 दिया. और व्हाट इज दिस? दिस इज द क्रेडिट पार्ट. ये पैसा आ गया कि आना बाकी है? आना बाकी है. इसको भेजा था वसंत. ओके. नाउ imagine you have done an entry for credit sale. This is sales. You have done an entry for credit sales, pure credit. You have done an entry for cash sales with discount. Try to make those two entries first. What is the entry for credit sale to Vishal? Vasant sir. Vasant to credit to Vishal. So Vasant to sale. Debit the receiver, credit all incomes and gains. That is how much? 5,400. Is that right? And this is the cash part. So what is your entry for cash sales? Cash to sales. But बीच में डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स. राइट? कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट ही करना है, एक्सपेंस यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना है? कैश आया 5,346, डिस्काउंट इज 54 एंड दिस इज 5,400. समझ आया दोनों एंट्री? क्रेडिट का है वसंत टू सेल्स, कैश का है कैश डिस्काउंट टू सेल्स, दोनों साथ में हो रहा है. कॉमन क्रेडिट है सेल्स. तो व्हाट यू कैन डू? मर्ज इट. सेल्स टोटल आएगा या 5,400? इधर क्रेडिट वाला है तो दैट इज 5,400. इधर कैश वाला है, कैश वाला 5,000. टोटल मिला के 10,800. मेन एंट्री में 10,800. इधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट, इधर कैश, तो आधा 5,400. समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी मर्ज करते हैं. तो मर्ज करोगे तो पूरा कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, ये या फिर ये वसंत लिखो, कैश लिखो, व्हाटएवर. डिस्काउंट अलाउड या रिसीव? अलाउड एक्सपेंस. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. वसंत अकाउंट डेबिट टू व्हाट?
सेल्स क्रेडिट साइड ऐड किया जाए, ऐड हो जाएगा। अमाउंट सोच के बताओ कैश में क्या है? 5346 नेट ऑफ डिस्काउंट यू गॉट 5346। हाउ मच इन डिस्काउंट? 54। हाउ मच इन वसंत? This is the credit part, 5400. Are you getting it? And how much in sales? 10,800. मतलब माल तो गया है 10800 का। देखो इनवॉइस बिल कितने का बना होगा इसमें? बिल 10,800। बिल मतलब आफ्टर टीडी वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंड? आफ्टर टीडी वैल्यू का बिल बनता है हमेशा, वो तो लॉजिक सेम ही है। बिल 10800 का बना, बंदे ने पैसा हाफ दिया तो उस पर सीडी अलाउ किया क्योंकि इमीडिएट पेमेंट, तो वी गॉट 5346। इसमें क्रेडिट पार्ट कितना था? 5000। मतलब वसंत इज आवर डेटर, क्रेडिटर। डेटर वसंत से कितना पैसा लेना बाकी? 5004। वसंत इज येट टू पे अस 5004। जैसे वी आर सपोज टू पे 4500 टू विशाल, so वसंत इज सपोज टू पे 5400 टू अस। यू गॉट दैट? नरेशन लिखना, बी गुड्स सोल्ड टू वसंत, आगे क्या ऐड कर देने का? पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट। पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट। इज दिस क्लियर? हेलो, समझा कि नहीं? तो यही है, अलग अलग एंट्री फ्रेम ना करके अभी आप कंबाइंड एंट्री डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट वाले में बताता हूं। सुनो, purchased goods of rupees 10,000 at 10% TD and 4% CD from Vijay, paid 1/3 of the amount. Paid 1/3 of the amount. Okay. So again, how is it? Cash credit or partly cash, partly cash? Agree on that, all of you? 1/3 of the cash after deducting. आफ्टर टीडी होली होगी। टीडी तो दोनों पे ही है। तो पहले तो ग्रॉस प्राइस लिख दो। व्हाट इज योर ग्रॉस प्राइस? अभी पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट है, वो समझ आया? पक्का? थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट, क्योंकि 1/3 ही दिया है। तो टीडी ले लो पहले। टीडी किस पे आएगा? दोनों पे आएगा। टीडी तो कैश क्रेडिट दोनों पे लेना है। कितना? 10% है, विच इज 1000। Subtracted, you get